Pawan Kumar Parihar Sahab, Chief Executive Officer of the District Development Council, Additional District Development Commissioner Rajouri, NYKK आला ऑफिसरान नितिन जी, हमारे साथी विक्रांत जी, जाकिर मलिक साहब, कास्ट से आए हुए डॉक्टर साहब, दीगर तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे साथी, मीडिया के साथी और तलबा व तलबात, बड़ी मसरत का मौका है, बड़ी खुशी का मौका है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान इस साल G20 का समिट जो होने वाला है उसको होस्ट करेगा। और विक्रांत जी ने जैसे बताया कि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे मुल्क के लिए कि हम पूरी दुनिया के 20 अव्वल दर्जे के ममालिक का जो समिट है, जिसको हाईएस्ट फाइनेंशियल बॉडी माना जाता है, उस समिट को होस्ट कर रहा है और उसका एक हिस्सा भी है। हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद जिस तरह तरक्की के मनाजिल तय किए हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, हिंदुस्तान के ही जो पड़ोसी ममालिक हैं, गरचे वो भी हिंदुस्तान के साथ ही आज़ादी हासिल कर चुके थे, लेकिन आज इस मुकाम पे ये हिंदुस्तान की लीडरशिप, हिंदुस्तान के कायदीन जिन्होंने अनथक मेहनत करके इस अरसा में आज इस मुकाम पे हमें पहुंचाया है, हम बड़े खुश हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। ये दुरुस्त फरमाया हमारे साथी ने, विक्रांत साहब ने, कि सियासत में आना या लीडरशिप करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरा काम नहीं है, और अगर सियासत में कोई चीज़ गलत लगती हो तो उस पर बाहर से बैठ के तनकीद करने से बेहतर है कि सियासत का हिस्सा बना जाए और इस सिस्टम को अगर कहीं गलती है तो दुरुस्त किया जाए। यही सरचश्मा है पावर का, ताकत का, और यहीं पे आके आपको वो मौके फराहम होंगे कि आप किसी गरीब की, गुरबा की मदद कर सकेंगे। मैं यहाँ डॉक्टर इमरान साहब थे आपके सामने, उनका टॉपिक ही सबसे बेहतरीन टॉपिक था। आज के यूथ को और आज के नौजवान बच्चों के पेरेंट्स को सिर्फ यही आज A warm good afternoon to all of you. Eminent speakers, distinguished guests, the most valuable today's vibrant, enthusiastic youth of District Rajouri, ladies and gentlemen, persons from media fraternity, we have special guests today from a team led by Bali ji, with him Rakesh ji and their whole unit that has enthralled and entertained all the youths coming here from every nook and corner of Rajouri district. And I am really honored and pleasured to see the enthusiasm among our youths and to have vibrancy on that. Let us not forget the efforts put by Mr. Nital Hanglu, District Officer Nehru Yuva Kendra Rajouri, and his partner and associate Mr. Vikrant Sharma, my younger brother, and his all team of Nehru Yuva Kendra, who has put their day and night to make this program a grand success. And this program is really a grand success, and it has conveyed its message, and it is for the first time I have seen that everybody has come here without any motto, without anything that they will get otherwise. I usually have seen people come
that they will at least they will get something. But today's youth, they are here without any motto, just to enlighten yourself and see the achievement today. We have achieved this, and you will not believe this, that some 8 to 10 years ago we have lot of poverty, and we couldn't have think of having member of G20. But now today we are doing the presidency of G20. So this is great honor, and this all credit goes to none other than Honorable Prime Minister of India and his team. And it is the message which we as a collectively part of district administration, part of our leaders, and on and all, as you all know, we have 70 to 80% population of today's India is comprising of youths aged between 20 to 35 years. So let us not forget, you are the future of the country, and I am really honored and really confident that we have got a battery of leaders within us, and the youths, the way they have displayed their performances today. And let us not forget that recently I have also gone to Mussoorie for mid-career training, and there we have also learned that good governance, these are all tools of good governance, and good governance can't go alone. As you see the theme, one earth, one family, one future, and without saving सार्वजनिक तरक्की के लिए एक मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया जो है ये एक अपॉर्चुनिटी जो है हमारी मतलब इसको कंट्री को मिला। तो इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करना है, और इस मैसेज को जो है ये G20 का जो है ये इसके मकासद क्या होंगे, दूसरी जो सारे हमारी यंग जनरेशन को किसी को उससे अवेयर करना है। BDCs, DDCs, PRIs, all elected representatives are political leaders, but youth, you people, we really get an opportunity, and I am really honored again. And I will say, let us not forget the two young girls who hosted this stage very beautifully. I don't remember their names actually, but they have done a wonderful job, and they need your applause for that. They have done a wonderful job. Not only that, but other speakers, other female speakers as well as speakers from boys side also, they have done a commendable job. And we are seeing this today is just 9th of March, and see the climate change. So again, with this hope that we will all work together, we will go for holistic development, but with some good initiatives, good governance initiatives, and let us not forget that one earth, one family, and one future. This we need to protect, because you will get, people will come and people will go. But this earth, this is only one earth, so we have to protect it. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया. Shri Pawan Parihar ji has always promoted the activities of youth in district Rajouri. Please put your hands together for Shri Pawan Parihar ji. Please put your hands together. Now I would like to invite Shri Nitin Hanglu ji and Shri Pawan Parihar ji to come forward. We are having our special guest SSP Rajouri Mohammad Aslam ji with us, and I invite you both to honor SSP Rajouri Shri Mohammad Aslam ji, who is known for his dedication, his commitment, his honesty. Please put your hands together and welcome SSP Rajouri Shri Mohammad Aslam ji. And I would like to request Nitin ji and Shri Pawan Parihar ji to present a token of remembrance to SSP Rajouri Shri Mohammad Aslam Sahab. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नितिन जी से कि शॉल प्रेजेंट करके प्लीज सबका इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि एवरी टाइम श्री मोहम्मद असलम जी हैज प्रमोटेड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूथ, एंड ही इज नोन फॉर हिज डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, एंड दिस इज अ प्रिविलेज फॉर अस that he is present among us.
For 2 minutes, I would like to request Shri Mohammad Aslam ji, Canada, United States, Mexico, Argentina, Brazil, उसके अलावा यूरोप के 5 देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, एक अफ्रीकन कंट्री है साउथ अफ्रीका, टर्की, और एशियन कंट्रीज में इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, जापान और साउथ कोरिया इन G20 देशों की लिस्ट में आते हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया, और 19 ये देश और 20वां देश है, 20वां देश में यूनियन है, दैट इज ए यूरोपियन यूनियन। G20 का मकसद एक ही है। 1999 में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, तो इसका मतलब यही था कि दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए। 2007 में जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जैसे कि आप सब जानते हैं, G20 को अपग्रेड किया गया अप टू हेड ऑफ द स्टेट्स के लेवल पर, और 2009 में G20 दुनिया की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बन गई इकोनॉमिक अफेयर्स को लेके। और 2023 में 1 दिसंबर 2022 को 2023 में G20 की लीडरशिप करने का, प्रेसिडेंसी करने का भारत को मौका मिला। जिस विश्व गुरु भारत का हम सपना देखते थे कि भारत पूरे दुनिया का लीडर बने, आज भारत पूरे दुनिया का लीडर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लीडरशिप के अंदर। और भारत की सभ्यता का मूल आधार जो महाउपनिषदों में लिखा है, उपनिषदों का उद्घोष है वासुदेवा कुटुंबकम, वो इस बार G20 का मूल मंत्र मोटू रखा गया। G20 के इस मूल मंत्र का मतलब है दिस वर्ल्ड क्या मसलों का हल देगी, आग और लहू आज बरसेगी, भूख और बेबसी कल देगी। तो जंग किसी मसले का हल नहीं, नौजवानों की एक भूमिका होनी चाहिए कि शांति बनी रहे, अमन बना रहे, प्यार बना रहे, और जो लोग हमें लड़ाने की कोशिश करें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। और 95% आबादी देश की, दुनिया की जो शांति से रहना चाहती है, उस शांति से रहने वाली आबादी को यूनाइट किया जाए, ये युवाओं का Y20 का तीसरा मकसद है। चौथा, शेयर फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। नौजवानों को अब समय आ गया है कि राजनीति में आना होगा, गवर्नेंस में आना होगा। पहले जमाने में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स 11th-12th के बाद डॉक्टर इंजीनियर बन जाते थे, फिर जो बचते थे वो कुछ UPSC में चले जाते थे, फिर जो बचते थे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की नौकरियों में आते थे, जिसे कोई सहारा नहीं मिलता था, वो राजनीति में आते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। हमारे बीच सामने नसीम लियाकत साहब बैठे हुए हैं, ये एक नौजवान हैं, मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथी हैं, और ये बहुत ही कम उम्र के अंदर DDC के चेयरपर्सन है, जो कि इक्विवेलेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी की सलामी लेते हैं, जो कि एक जबरदस्त वकील है, जम्मू यूनिवर्सिटी, रिनोन यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ पास किया, लॉ ग्रेजुएट किया। ऐसे नौजवानों को राजनीति में आना होगा, डेमोक्रेसी में आना होगा, ताकि राजनीति, कुछ लोग कहा करते हैं पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। ये लोगों ने जिन्होंने कहा पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, वही सबसे बड़े डर्टी लोग थे। अगर राजनीति डर्टी है तो हमारे प्रॉफिट्स राम और कृष्ण भी राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे। प्रॉफिट्स के बाद जितने भी खलीफा आए वो भी पॉलिटिशियन थे। राजनीति एक बहुत बड़ा हवन था, यज्ञ था, जिसे चाणक्य कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए गेम फॉर द चेंज। If you want to change the society, you have to grab the power, and it is up to the youth of the nation to grab the power in the coming era. And this is the fourth notion of our Youth 20 mission, inaugurated by Minister of Youth Affairs and Support, Shri Anurag Thakur ji. And the last but not the least, health, well-being and sports is the agenda for youth. आप किसी व्यक्ति से पूछें कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन वही व्यक्ति दे सकता है जो बीमार हो। किसी बीमार व्यक्ति से पूछें कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, किसी बुखार वाले व्यक्ति से, किसी पेट दर्द वाले व्यक्ति से, किसी के पेट में अगर डायसेंट्री हुई है उस व्यक्ति से पूछो कि हेल्थ क्या होती है।
कहते हैं कि अगर हेल्थ होगी जान है तो जहान है। Invite Dr. Arvind Kumar Ishar, Senior Scientist and in charge, Krishi Vigyan Kendra, Punch, to share his thoughts on mission life and the adoption of millets in diet as part of International Year of Millets. Please put your hands together for him. अगर मुझे ये पता होता कि इस प्रोग्राम में मुझे किस लेक्चर के लिए बुलाया गया है तो यकीनन मैं सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। एक इतना उम्दा प्रोग्राम जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को, जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस म्यूज़िक की फ्रेगरेंस को। मेरी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी सी अलग है प्रोग्राम से, और ये बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए। आपको नशे के बारे में